Today I will teach you how a sentence is formed. As we all know, the sentences are of four types. First is called simple sentence. And how to identify a simple sentence? किस तरह एक सिंपल सेंटेंस को, साधारण वाक्य को पहचाना जाता है? A simple sentence always carries a single verb. एक अकेली क्रिया जिसमें है वो सिंपल सेंटेंस होता है. जस्ट लाइक बर्ड्स सिंग, पक्षी गाते हैं. We all know that birds do not sing any hymn or any song. Their voice or that chirping sound is called their song. Subject plus verb first. The sentence is finished. यहाँ पर sentence finish होता है. बात खत्म हो गई. Only two words. केवल दो words में subject और verbs, noun और verb. यहाँ birds क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. और सेकंड क्या है? सिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. नेक्स्ट, आई किल्ड द शेरिफ. मैंने शेरिफ को मार डाला. शेरिफ इज अ मजिस्ट्रेट और जज इन अरेबियन कंट्रीज. जैसे हमारे मजिस्ट्रेट या जज कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर और वन ऑफ द पर्सन सिटिंग और हियरिंग द केस इन अ बेंच, वहाँ पर शेरिफ कहा जाता है. मैंने शेरिफ को मार डाला. अब यहाँ तीन चीज हो गई. ये भी सिंपल सेंटेंस है. In the uppermost sentence we used the verb sing, whereas in the second sentence we used a second form of the verb killed, subject verb second form. Next, object. In case I remove the sheriff or object from the given sentence, the sentence will remain incomplete. यहाँ पर सेंटेंस कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा. क्यों? अगर मैं यहाँ से हटा दूं द शेरिफ तो क्या रहेगा? वो आई किल्ड, मैंने मार डाला. तो हर एक के जहन में सवाल पैदा होगा. क्या सवाल पैदा होगा? किसको मार डाला? अनलेस आई यूज्ड द शेरिफ, द सेंटेंस विल नॉट गेट कंप्लीटेड. नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर लिख दूं आई एम द शेरिफ, subject verb first and object. मैं ही शेरिफ हूं. am itself is a verb. It is a primary verb. There are two types of auxiliary verbs, helping verbs, in which one is primary and another is modal. Primary, be, do, have. Be bears. Three form in present tense, is, am, are. Am is first person singular I, whereas are is used with first person plural we and second and third person plural you and they. You are, they are. Where is called third person singular. He is, she is, it is, वह है. In case the gender is masculine, we have to use he. Okay? The same pronoun will be followed by the same verb, is. He is. Whereas the feminine gender she shall also bear is. She is. वह है या वह लड़की है. Or in case of any neuter gender, though we talk about any thing or animal, since we have been taught during our early childhood the definition of noun,
Noun is the name of person, place, animal and thing. Okay, person, place. Person and place are called proper noun, whereas animal and things are common noun. Table, it doesn't need, table doesn't need to be begun from a capital, any capital letter. But I wanted to write my own name Hemant. I will have to use Hemant. I will use Indore with a capital letter I. I will use America with a capital letter A. Okay, because all these are called proper noun. I am the sheriff. मैं ही sheriff हूँ. This is not object. This is called complement. What does it called? Complement. Subject plus verb first plus complement. Complement means the element that accomplish something. वह चीज जो किसी चीज को पूर्ण कर देती है. वैसा एक और होता है, इसका होमोफोन होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट. वहाँ ई की जगह आई आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट. इन केस हम किसी समारोह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, एक खाना खाने के बाद इन्वेलॉप देते हैं, हम गिफ्ट देते हैं, उस पर लिखते हैं विद बेस्ट विशेस की जगह हम लिख देते हैं विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. वो कॉम्प्लीमेंट में ई की जगह आई आ जाता है. क्यों? उसको क्या बोलते हैं? शुभकामनाएं. शुभकामनाओं सहित, विद बेस्ट विशेस और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, here compliments refers to something that accomplish a sentence. जो किसी वाक्य को पूरा कर दे. क्यों पूरा कर दे? यदि मैं शेरिफ हटा दूं तो ये आई और एम दोनों इनकम्प्लीट रहेंगे. इन केस इसका उदाहरण है कि कोई आता है आपके अपार्टमेंट पे, आपके फ्लैट पे, आपके घर पर, और आपका डोरबेल प्रेसअप करता, रिंगअप करता है, नॉक करता आपके डोर पर, तो आप कहते हैं हु इज देयर, कौन है? और मैं हिंदी में बोलूं मैं हूं. मैं कौन? अनलेस आई यूज हेमंत शर्मा, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ आई एम हेमंत शर्मा. I am will remain incomplete until I use my own name, Hemant Sharma. I am the sheriff. That is why the sheriff is called complement. Okay. One more interesting thing regarding the complement, regarding the use of complement and object. Despite using object, we need one more complement. जब ऑब्जेक्ट है तो कॉम्प्लीमेंट की क्या जरूरत है? हो सकता है, लेकिन हमको करना पड़ रहा है. ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन केस वी डू नॉट यूज एनी कॉम्प्लीमेंट, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ विल अगेन रिमेन इनकम्प्लीट. फिर से वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा. कैसे इनकम्प्लीट होगा मैं बता रहा हूँ. द कंपनी मेड मिस्टर शाह द मैनेजिंग डायरेक्टर. यहाँ द कंपनी क्या हो गई है? सब्जेक्ट. मेड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मिस्टर शाह हो गया ऑब्जेक्ट. द कंपनी मेड मिस्टर शाह. मिस्टर शाह को कंपनी ने बनाया. अब जहन में सवाल आता क्या बनाया, तो किसके लिए फिर कॉम्प्लीमेंट चाहिए. वो कॉम्प्लीमेंट क्या है? द मैनेजिंग डायरेक्टर. क्या बनाया? मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक बनाया. क्या बनाया? प्रबंध निदेशक बनाया. देखिए पढ़िए, द कंपनी मेड मिस्टर शाह, तो मिस्टर शाह ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कौन आया है? मैनेजिंग डायरेक्टर.
In case we remove complement despite the object, the sentence will again prove incomplete. Incomplete रहेगा वो पूरा का पूरा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट का सवाल होता है तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं दो तरह के? बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा ये। इन केस हम ट्रैक पर आ रहे हैं, इंग्लिश का ये ट्रैक है, इंग्लिश इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज और वर्नाक्यूलर दैट वर्क्स एंड रन्स लाइक ए ट्रेन, बट यू हैव ऑलवेज सीन अ ट्रेन बीइंग रन ओवर ऑन ए पर्टिकुलर ट्रैक। कभी सड़क पर चलते देखा ट्रेन को, कभी नाव जैसी नदी पर चलते देखा ट्रेन को। वो कहाँ चलती? किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर चलती है। वो ट्रैक चेंज करती है, वो ट्रैक बदलती है, उसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दो तरह के वर्ड्स होते हैं बेटा। मम्मी खाना बनाती है किचन में, अब सुबह आपको पालक की सब्जी खिला दी, बनाया, ठेला गाड़ी पे से पालक खरीद के लाई, उसको अच्छा प्यार से काटा और फ्राई करके आपको सर्व कर दिया, आपने खा लिया, अच्छा लगा लहसुन डाल के। दूसरी चीज, शाम को फिर पालक बना दिया क्या? नहीं बनाया। अगले दिन फिर पालक बना दिया क्या? नहीं। डू वी लाइक टू कंज्यूम स्पाइनेक एवरी डे? नहीं बनाया। सुबह तो खाया था पालक, शाम को कौन खा रहा पालक? हम तो सुबह की रखी हुई सब्जी शाम को नहीं खाते, हम तो मार्केट से कुछ बुलवा लेते हैं, नहीं बाहर से बुलवा लें, पर नहीं, ये वाली सब्जी नहीं खाएंगे, बदल कर। अच्छा, आज तुअर की दाल बनी है तो शाम को पालक बना है, अगले दिन मूंग की दाल बनी है तो शाम को भिंडी बनी है, फिर उसके बाद गिल की बनी है, फिर कद्दू बना है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि मम्मी जब खाना बना रही है तो सब्जी बदल कर बना रही है, लेकिन उसकी जो रेसिपी है उस रेसिपी में स्पाइसेस वो के वही डल रहे हैं। देयर आर 7 स्पाइसेस, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, नमक, हींग, मिर्ची, ये वो के वही डो रहा है, वही चीज है। तो जो मसाला है वो कभी चेंज नहीं होता है, वही मसाला कहते हैं। कौन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड। क्या बोलते हैं उस मसाले को? उसी को कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स। उसी मसाले को कहते हैं, समझ में आ गया? चाहे ग्रामेटिकल वर्ड्स कह दो या स्ट्रक्चर वर्ड कह दो। और इधर जो सब्जी बदल कर खा रहे हैं वो क्या होते हैं? कंटेंट वर्ड। क्या होते हैं? तो मैं आगे चलकर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंटेंट वर्ड एंड स्ट्रक्चर वर्ड। मैथमेटिक्स की बुक उठाएंगे, मैं अब इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मसाले वही दिखेंगे, बस सब्जी बदल जाएगी। अकाउंट की बुक उठाएंगे, मसाले वही दिखेंगे, सब्जी बदल जाएगी। बीएस की बुक उठाएंगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, मसाले वही दिखेंगे, सब्जी बदल जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर की बुक उठा के देखेंगे, मसाले वही दिखेंगे, सब्जी बदल जाएगी। और एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की बुक उठा के देखेंगे तो बायोलॉजी में मसाले वही दिखेंगे, सब्जी बदल जाएगी। अब आप देखिए, हम दो तरह के ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज किए जाएंगे। सीता gave गीता अ बुक। सीता ने गीता को एक किताब दी। अब देखिए दो तरह के ऑब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म, गीता ऑब्जेक्ट, और बुक भी ऑब्जेक्ट। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म, और इसको रिप्लेस किया जा सकता है फिर से। सीता गेव अ बुक, लेकिन एक आपको यहां पर प्रीपोजिशन यूज करना होगा, तब जाकर वो करेक्ट होगा।
तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से हमने रिप्लेस कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर क्या यूज किया हमने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर टू गीता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव भी अलग ढंग से बनेंगे इनके, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, सीता गेव गीता बुक, ये एक्टिव वॉइस है। अगर इन केस यू आर आस्क्ड टू चेंज द वॉइस, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो क्या देखते हैं पेपर में कि भाई पूछा क्या बोला, चेंज द वॉइस, वो ये नहीं कहते हैं कि चेंज इनटू पैसिव, चेंज द वॉइस। तो ये स्वविवेक पर निर्भर करता है, स्वविवेक पर निर्भर क्या करता है कि स्टूडेंट को समझ ले कि भाई हमको डायरेक्ट ये हमको एक्टिव दिया है या पैसिव दिया है। एक्टिव दिया तो पैसिव में चेंज कीजिए, और पैसिव दिया तो एक्टिव में चेंज कर दीजिए। एंड वी शुड बी कैपेबल इनफ टू डू आइदर ऑफ द थिंग, दोनों तरह से हमें आना चाहिए। ऐसे नरेशन होता है, चेंज द नरेशन, वो ये कहता है, ये नहीं कहता कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए और कन्वर्जन में इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कर दीजिए। उसमें क्या बोलता है, क्या बोलता है, चेंज द नरेशन। बस आपको पता होना चाहिए कि हमको डायरेक्ट दिया तो हमको इनडायरेक्ट बनाना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इनडायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट बनाना है। उसके रूल्स रेगुलेशंस कब पता चलेंगे, व्हेन वी हैव अ परफेक्ट ग्रामेटिकल अप्रोच। जब तक आपके पास परफेक्ट ग्रामेटिकल अप्रोच नहीं है, यू आर ऑलवेज अनेबल to write your own or create your own sentences or express your own ideas either through oral or written form। ना तो आप ओरल में ना रिटर्न फॉर्म। इसके लिए ग्रामेटिकल अप्रोच तो लगती है, क्यों कि मैंने क्या कहा कि लैंग्वेज एक ट्रेन का काम करती है, और उसको सही दिशा में ले जाने के लिए क्या होती है बेटा, ग्रामर। अगर मैं इसका पैसिव बना दूं, क्या बना दूं, पैसिव, तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया तो हम इसी को एम्फासिस करेंगे, एम्फसाइज इसी पे आएगा। और ये गिव का सेकंड फॉर्म गेव है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी भी सेकंड लगेगी, कैसी, यहाँ पर गीता आएगा पहले, जो पहले आया वो पहले लिखा जाएगा, गीता अकेली गीता, वाच, वाच क्यों, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, तो ईज का सेकंड फॉर्म वाच, गीता वाच गिवन, ईज वाज, इन सब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, गिवन के बाद आता है कौन सा, ऑब्जेक्ट, गिवन अ बुक, बाय सीता। उसके बाद क्या किया हमने, यहां से उठाया इसको, सीता वहीं रहेगी, लेकिन हम सबसे पहले उठाएंगे किसको, अ बुक को। अ बुक या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, अ बुक वाज गिवन एज इट इज रहेगा, लेकिन टू गीता बाय सीता। बस ये वॉइस चेंज हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं है वॉइस चेंज करना। यदि ये वॉइस चेंज करना आ गया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो सब कुछ आपके लिए आसान है, सब कुछ आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं। वो सिंपल वे में आपसे डुएल डायरेक्टेड पूछे जाते हैं बेटा, किसमें, एग्जामिनेशन में, काफ़ी सिंपल चीज़ें आती हैं। अब दूसरी चीज़ ये होती है बेटा कि दूसरी चीज होती है ग्रामर में, डुएज डायरेक्टेड में वॉइस आते हैं। वॉइस के अलावा डुएज डायरेक्टेड में कुछ आपको क्लॉज दिए जाते हैं। उस क्लॉज में क्या होता है बेटा, नाउन क्लॉज होता है। वो नाउन क्लॉज ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एडवर्ब। क्या यूज होते हैं, एडवर्ब्स यूज होते हैं।
तो एडवर्ब से बनते हैं एडवर्बियल क्लॉज। क्या बनते हैं? उस एडवर्बियल क्लॉज में क्या चीजें जो होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें होती है? कौन कौन से एडवर्ब होते हैं बेटा, आप बताइए? पर्जन प्लेस, इसके अलावा बताइए। दो बार हमने बताया है कि एक है पर्जन, एक है प्लेस, एक है रिजल्ट, एक है रीजन, एक है टाइम। टाइम के अलावा एक और क्या है? कंडीशन। तो कंडीशनल क्लॉज पूछे जाते हैं, रिजल्ट पूछे जाते हैं, रीजन्स पूछे जाते हैं, अधिकांशतया रिजल्ट पूछे जाते हैं, रीजन पूछे जाते हैं, पर्जन पूछे जाते हैं जिसमें हु यूज होता है। अगर मैं यहां लिख दूं द बॉय इज wearing a रेड शर्ट, इस दो एक पेयर दे दी जाती, दो सेंटेंसेस की पेयर दे दी जाती सिंप्लीफाइड वे में, एंड यू आर आस्क्ड टू कंबाइन द पेयर बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ द बॉय इज wearing a red shirt, the boy is my cousin। लड़के ने रेड शर्ट पहन रखी है, लड़का मेरा कजिन है। और कहा जाता है सिंपल वे में कि rewrite the or combine the given pair of sentences by using who। who का उपयोग करते हुए आप क्या करेंगे? और ये कौन सा क्लॉज पता है? एडजेक्टिव क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज एक तरह का नहीं होता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। एक होता है कौन कौन सा? दो तरह के एडजेक्टिव क्लॉज में को किसी को पता है? पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है? एक होता है डिफाइनिंग और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग। और कुछ नहीं है उसके बीच में, एक कामा का डिफरेंस होता है। इन्वर्टेड कामा जिस ऊपर लगता है, ऐसे दो कामा सिर्फ सिंपल कामा लगते हैं दो हर क्लॉज के बीच में। मैं बता रहा हूँ, उसको बता दूंगा आपको। द बॉय इज वियरिंग ए रेड शर्ट, द बॉय इज माई कजिन। अगर मैं इसको ये पेयर का ए पार्ट और पेयर का बी पार्ट है, इन दोनों को मैं हु से क्या कर रहा हूं? कंबाइन कर रहा हूं यूजिंग हु। तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है। द बॉय यहां पर हमको यूज करना है हु। द बॉय हु इज, फिर क्या हुआ? वियरिंग अ रेड शर्ट। उसके बाद कुछ नहीं करना। द बॉय कॉमन हो गया है, ये द बॉय और ये द बॉय कॉमन हो गया है। यू वोंट हैव टू रिपीट द सेम फ्रेज। द बॉय, आप उस फ्रेज को रिपीट नहीं करना है। इज से उठाना है, इज माई कजिन। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर साल आता ही है। और बच्चे उससे थोड़ा घबरा जाते हैं कि इसका क्या करना है। ऐसे सिंपल से पेयर्स को हम क्या करते हैं? ओवरलुक कराते हैं। द पेयर बियर्स और कैरीज 1 मार्क। और एक मार्क हमें लैंग्वेज में, यार लैंग्वेज तो ठीक है, पूरी परीक्षा में एक मार्क की कीमत रखता है। यदि 5 सब्जेक्ट्स हैं, 500 मार्क्स, तो समझ के चलना कि 5 मार्क्स से 1% बनता है। यदि कहीं 5 मार्क्स रुक गया तो समझ के चलो हम 1% से पीछे हट गए। 75 आना थे लैपटॉप के लिए, लेकिन 74 आ गया। बहुत पछतावा होता बाद में। वी हैव टू रिपेंट। ओके, दैट प्रोज लेटर यूजलेसली, और यूजलेस हो जाता, कोई मतलब नहीं। फिर पछतावे हो तो क्या, चिड़िया चौके की। अब देखिएगा यहाँ पर
आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में डिफरेंस दिखा देता हूं। ये समझ में आया आपको? यहाँ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है, उसका मामूली सा डिफरेंस सिर्फ कामा से पता चलता है, लेकिन कामा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूटिलाइज्ड होता है, और वह हमें कैसे देखना है, किस तरह से देखना है, ये स्वविवेक पर निर्भर करता बेटा। ये देखिए, यदि मैं सिंगुलर के लिए यूज करूं, अगर मैं लिख दूं यहां पर सामीज सिस्टर, सामी की बहन, हु लिव्स इन रतलाम। ये देखिए, हु दिख रहा है? दिखा कहीं पर? है ना? यहां पर ईज है, हु के बाद ईज वर्ब है। ऐसा कौन सी वर्ब है? ये प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं बेटा? क्या यूज कर रहे हैं? हु के बाद मैन वर्ब यूज कर रहा है। वहां यहां प्राइमरी यूज की है, वहां मैन वर्ब यूज करेंगे। सामीज सिस्टर हु लीव्स। लीव्स क्यों? क्योंकि सामी सिस्टर अकेली सिंगुलर पर्सन, एंड सिंगुलर पर्सन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। सामी की बहन जो रतलाम में रहती है, हु लीव्स इन रतलाम, इज अ डॉक्टर। सामी की बहन जो रतलाम में रहती है वो एक डॉक्टर है। बेटा ये क्या है पता आपको? डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। ये डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर दूं तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। किसकी बात कर दूं? कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा कैसा सेंटेंस हम यहां पर पुटअप करेंगे। सामीज सिस्टर्स हु लिव्स इन रतलाम इज अ डॉक्टर। अब देखिएगा थोड़ा सा चेंज, सिर्फ कामा, हु के पहले कामा और रतलाम के बाद कामा। एक कामा हु के पहले और एक कामा रतलाम के बाद। हु के पहले और रतलाम के बाद, हु लिव्स इन रतलाम। ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या समझ में आया आपको? पता है क्या समझ सकते हो? इसको कहते हैं रीडिंग स्किल। इंग्लिश बियर्स 4 व्हील्स, इंग्लिश से कार भी हो सकती है जिसके 4 पहिए हैं, 4 लर्निंग स्किल्स हैं। वो क्या है? जो कैसे सिस्टमैटिक वे में आते हैं उसको कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 2 चीज होती है क्लासरूम प्रोसेस। क्लास में चिल्लाते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है, सुन रहे हैं, टीचर पूछ रहा तो जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लिसनिंग, जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीकिंग। लेकिन जब एग्जाम में बैठे हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां पे सिर्फ पढ़ रहे हैं। रीडिंग पेपर में ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट फॉलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो इट। अब यहाँ पर आर कहाँ पे होती है? एग्जामिनेशंस में।
और पढ़ने के बाद क्या करना है, लिखना। क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी तो आंसर आएगा, और आंसर आएगा दिमाग में तो लिख पाओगे। ये क्लास से और ये क्या है बेटा, ये एग्जाम है। LSRW इसको डिवाइड किया गया है। लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग आर कॉल्ड क्लासरूम प्रोसेस, whereas रीडिंग एंड राइटिंग आर एग्जामिनेशन प्रोसेस। अपने आप को परफॉर्म करना है, या आपको परफॉर्मेंस देना है कि हाँ हमको इतना आता है, वी हैव हर्ड एंड लर्नेड सो मेनी थिंग्स एंड सो मच फ्रॉम आवर बुक्स एंड फ्रॉम आवर टीचर्स दैट वी आर केपेबल इनफ टू गिव एवरीथिंग हियर दैट वी आर गोइंग टू बी आस्क्ड थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर्स। आप यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर सामी की बहन जो रतलाम में रहती है वो डॉक्टर, इसका भी यही मतलब है, लेकिन फर्क हुआ कामे का। लेकिन कामा में क्या फर्क हुआ पता है, ऊपर वाले का मतलब है डिफाइनिंग। इसका मतलब है कि सामी की एकलौती बहन है, एक ही बहन है, रतलाम में रहती है और वो डॉक्टर है, और कामा लगा दिया तो इसका मतलब सामी की एक बहन और है, 2-4 बहन और है जो इधर उधर कहीं रहती है, लेकिन जो रतलाम वाली बहन है वो डॉक्टर है। बोले स्वामी की जो रतलाम वाली बहन है ना वो डॉक्टर है। समझ में आया? एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। लेकिन जब ज्यादा लोगों के लिए बात होती है तो भी कामा यूज होता है। अभी सिंगुलर सेंस सिखाया मैंने आपको, लेकिन मैं यदि प्लूरल सेंस सिखाऊं इसी कामा का, इसी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग सेंस का, तो वो क्या होगा पता आपको, इस टाइप से होगा। अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी वर्ब को क्या कर रहे हैं, द डूअर ऑफ एक्शन है, किसी वर्ब को अंजाम दे रहे हैं, किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो बहुत सारे हैं। अगर मैं लिख दूं डिफाइनिंग, define adjective clause। देखिएगा यहां पर डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर सेंस ऑफ प्लूरल। द बॉयज, क्या लड़का अकेला है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। द बॉयज मीन्स लड़के। द क्यों लगा, पर्टिकुलर लड़के हैं, वो एक ग्रुप है लड़कों का, चाहे वो किसी कॉलोनी के हैं या किसी सोसाइटी के हैं या किसी स्कूल के हैं, किसी इंस्टीट्यूट के को बिलोंग करते हैं, या किसी हॉस्टल के हैं, कहीं के भी हों, या किसी मित्र मंडली के हैं वो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल है वो। द बॉयज हु वांटेड टू प्ले फुटबॉल, लड़के जो फुटबॉल खेलना चाहते थे, वो लड़के, मतलब लड़के जो फुटबॉल खेलना चाहते थे, गॉट डिसअपॉइंटेड, व्हेन इट अरेंज्ड। लड़के जो फुटबॉल खेलना चाहते थे निराश हो गए, हताश हो गए जब बारिश हुई। अब बारिश में कोई फुटबॉल खेल सकता, उनका मन था लोग फुटबॉल खेलेंगे आज शाम को, लेकिन अचानक क्या बारिश हो गई, निराश हो गए सब लोग। ये डिफाइनिंग, कोई कामा नहीं लगाया, मतलब वो ही लड़के, इसका मतलब है वो ही लड़के निराश हुए जिनको फुटबॉल खेलना था। बाकी दूसरे जो लड़के थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बारिश हुई, कि तूफान आया, कि ओलावृष्टि हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, कोई मतलब नहीं उनको, वो अपने अपने घर चले। लेकिन परेशानी किनको ही, तकलीफ किनको ही, मन किनका दुखा, जिनको फुटबॉल खेलना था।
लेकिन यहाँ पर यदि इसको नॉन डिफाइनिंग में कन्वर्ट कर दूं, किसमें, नॉन डिफाइनिंग, ये प्लूरल सेंस है बहुत सारे लोगों के लिए। नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज में यदि मैं क्या लिखूंगा, द बॉयज who wanted to football got disappointed when it rained। यहां पर मैं हु के पहले कमा लगा दूंगा और फुटबॉल के बाद कमा लगा दूंगा। मतलब सारे ही लड़के फुटबॉल खेलना चाहते थे और सारे के सारे ही उस समय निराश हो गए। ऐसा कोई लड़का बचा ही नहीं जो निराश नहीं हुआ। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सभी को फुटबॉल खेलना था। सारे के सारे ही लड़के निराश हो गए और सारे ही फुटबॉल खेलना चाहते थे और निराश इसलिए हुए कि बारिश हो गई। तो फर्क समझना, इसको कहते हैं रीडिंग स्किल। LSRW, ध्यान रखिएगा। लिसनिंग, सबसे पहले व्यक्ति सुनता कब है? जब उसका फोकस है whosoever is speaking to them, उनसे बात कौन कर रहा है? टीचर बात कर रहा है तो टीचर की तरफ फोकस करे। बाकी मन है, ये मन मक्खी के समान है, भटकता रहता, उड़ता रहता है। अच्छी जगह भी बैठ जाता है, मिठाई पर भी जाके बैठ जाता है, मतलब स्टडी पर भी बैठ जाता है और कचरे में भी चला जाता है। मक्खी कचरे पे भी बैठ जाती है, फिर उड़ के आती है, मिठाई पर बैठ जाती है। तो मन मक्खी के समान है, तो इसको कंट्रोल सबसे पहले मनोनिग्रह, तब जाकर स्टडी आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके। अब दूसरी चीज क्या होती है कि हम पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से दिमाग में व्यवस्थित ढंग से सीखें, रखें, उसको रिकॉलिंग में लेकर आने की प्रोसेस को कंटिन्यू करें कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कब यूज होती, तब जाकर हम एक फ्रीलांस राइटर की तरह काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट लाइक ए कॉइन, इंग्लिश वर्क्स लाइक ए कॉइन। कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश का मैं के फ्रेंच लैंग्वेज का मामला हो, चाहे संस्कृत का मामला हो, जो सब समग्र भाषाओं की जननी है, कोई सी भी लैंग्वेज है उसके दो फेज होते हैं, एक सिक्के के दो फेज होते हैं, ओवरवर्ड एंड रिवर्स, जिसको सिंपली हेड एंड टेल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश के भी दो फेज हैं। एक क्या है? पहला क्या बेटा? फ्लुएंसी, बड़बड़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और दूसरा है एक्यूरेसी। जब व्यक्ति बोलता है तो फ्लुएंसी चाहिए, तो फ्लुएंसी चाहिए तो उसमें व्यक्ति ध्यान नहीं देता, कुछ भी बोल गया, कोई से भी वर्ब यूज कर गया, बड़बड़ करता हुआ निकल गया। मैंने ठीक है, समझ गया व्यक्ति, जिसने सुना नहीं सुना। लेकिन इन केस यू हैव सेट डाउन टू राइट ए लेटर, किसी को आप पत्र लिख रहे हैं या इन एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं बहुत बड़ा, तो you will have to pay proper attention to whatsoever grammatical structure you are using। जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप फोकस करना है कि ढंग से यूज कर रहे हैं, सही वर्ब लगाएं, उसमें सही फॉर्म लगाएं, हम सही एडजेक्टिव लगाएं, सही एडवर्ब लगाएं। ऐसा नहीं कि चाहे जो हम यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी वर्ब बताई कि वर्ब दो तरह की होती है। एक मेन वर्ब होती है जो कंटेंट वर्ड में आती है। किसमें? कंटेंट। जैसे हम सब्जी बदल बदल के खाते हैं वो मेन वर्ब है। लेकिन मसाले, वो उसमें आती है एक वर्ब, कौन सी वर्ब आती है? ऑक्सिलरी वर्ब, जो फिर दो भागों में डिवाइड कर दी जाती है, जिसमें एक होती है प्राइमरी, बी, डू, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, और फिर डू, डज, डीड, फिर हैव, हैज, हैड, लग गया।
पास्ट परफेक्ट टेंस चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो भी लगता है ये सब उसमें यूज होता है। और फिर आता है एक मोडाल। दूसरा सेक्शन क्या बनता है ऑक्सिलरी का बेटा? मोडाल। उसको मोडाल्स बोलते हैं। तो मोडाल्स मतलब विल वुड, इसमें फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में विल वुड शैल शुड, कैन कुड मे माइट, मस्ट आट टू, उसके बाद यूज्ड टू। इस तरह की जो वर्ब होती है, डेयर, ये सारी वर्ब्स क्या हैं? कौन सी वर्ब्स हैं बेटा? modals and modals verbs, all of the modals verbs are always used by natural verb first form। वर्ब की प्रथम क्रिया से, मतलब वर्ब की पहले रूप से, क्रिया के प्रथम रूप से ही वो क्या होगी? फॉलो होगी। You should go, you should pay attention to me, I will tell you। Tell is the first form। ये नहीं कहा कि I will told you, ये नहीं कोई she will tells me, she will tell me। और सिंपली यदि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस डालता तो क्या लिखता? she tells me that she brings her books only for her। तो यहाँ पर इसको कहते हैं एंट्री। एक बार आपको एंट्री करना आ गई, क्या करना आ गई? इंग्लिश की एंट्री करना आ गई ना बेटा, तो आगे आपके लिए सब कुछ ये रास्ता आसान है, क्योंकि इंटरव्यू भी फेस करना होंगे। स्टूडेंट लाइफ ही सब कुछ नहीं है, ये लिमिट ही नहीं है, इसके बाहर जाना है। ये 12th के बाद फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद कहीं आपका अपॉइंटमेंट हुआ तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। हमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट से लेकर हायर एजुकेशन तक आपने क्या सीखा, तो वो आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। और वो जैसे ही आप बोलेंगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि कितने पानी में है। ये आई के साथ भी ये यूज कर रहा है, मतलब इसको हेमंत शर्मा ने पढ़ाया है। तो ध्यान रखिए, अच्छे से लर्न कीजिए आप चीज़ों को, ठीक है ना।